start self inductance of a solenoid. Now it is a solenoid of length L, side A, current I passes through the solenoid. Now magnetic field due to the solenoid is B is equal to mu naught Ni, or B is equal to mu naught Ni over L. The small n is the number of turns per unit length. So magnetic field due to solenoid is B is equal to mu naught Ni. Now magnetic flux linked across one turn of the coil is, so flux per turn is Ba. So B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. So क्या आ गया? B is equal to mu naught small n Ia. Now n is the number of turns per unit length. तो यहाँ पे हमने n over L रिप्लेस कर दिया. तो क्या आ गया? B is equal to mu naught n I A over L. ठीक है स्टूडेंट. So this is the flux per turn. So magnetic flux linked across n turns of the coil. तो क्या आ जाएगा टोटल स्टूडेंट? n phi. phi की वैल्यू आपने ये फ्लक्स पर टर्न निकाली हुई यहाँ पुट कर दीजिए. n और ये n क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? n स्क्वायर. सो क्या फार्मूला आ गया फ्लक्स का? म्यू नॉट n स्क्वायर IA over L. So this is the magnetic flux linked across n turns of the coil. Mu naught n square Ia over L. So phi is equal to Li. Total flux is equal to Li. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट फाई की. फाई की वैल्यू पुट करोगे ये I और I क्या हो जाएंगे? कैंसल. तो L आपकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगी सोलेनॉइड की? क्या फार्मूला आ गया? म्यू नॉट n स्क्वायर A ओवर L. ठीक है स्टूडेंट. और अगर आपने स्मॉल n की फॉर्म में लिखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ की फॉर्म में लिखना है, तो इस n को स्टूडेंट रिप्लेस कर दीजिए. n आपका स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो कैपिटल N क्या आ गया? स्मॉल n इंटू एल. यहाँ पे पुट कर दीजिए. एक एल कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर A ओवर L. स्टूडेंट पॉपुलर फार्मूला आपका यही है. L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A ओवर L. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड. ठीक है स्टूडेंट. where capital N is the number of turns and small n is the number of turns per unit length. ठीक है स्टूडेंट, बात एक ही है. So this is the self inductance of a solenoid. So derivation is over. So next topic is mutual inductance. So mutual inductance, it is the possible for the magnetic field of one coil. Student, एक coil में क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड. और क्या प्रोड्यूस होगा? टू इंड्यूस करंट इन द सेकंड कॉइल. एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और नियर बाय कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट. सो दिस phenomenon is called mutual inductance. So for example, these are two coils, one is primary and other is secondary and written as P and S. So primary coil is connected with battery B with the tapping key K and this is by nearby coil S. स्टूडेंट इन दोनों में कनेक्ट नहीं किया हुआ. These are nearby coils. ठीक है स्टूडेंट. and that is connected with a galvanometer. Secondary coil is connected with a galvanometer. The coils are connected indirectly. मैंने कहा दोनों को कनेक्ट नहीं किया हुआ. They are nearby coils. The coils are connected indirectly through the magnetic flux. ये indirectly कैसे connected हो जाएंगी? Through magnetic flux. वैसे connected नहीं है. This effect is called mutual inductance. Now, mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil. कौन सी coil में induce होगा EMF? secondary coil में. Due to change किस में होगा? Change in current in primary coil and hence there is a change in magnetic flux in the secondary coil. ठीक है स्टूडेंट. Means for example ये आपकी प्राइमरी कॉइल है. जैसे स्टूडेंट इसमें करंट फ्लो करेगा, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, टैपिंग की क्लोज कर देंगे, तो इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट. करंट से स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स. और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में जाएगा? नियर बाय सेकेंडरी कॉइल में. और अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा
तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में भी, इस कॉइल में भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि ये दोनों कॉइल्स आपस में कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गई हैं. So mutual induction is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil and hence change in magnetic flux in the secondary coil. प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने से, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो गया, जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी प्रोड्यूस हो गया. सो 521, so magnetic flux produced by coil 1 that is directly proportional to the strength of current in primary coil. So 521 is Mi1. M is the constant of proportionality and is called mutual inductance. So 521 is the flux produced in the coil 1 due to, sorry, 521 is the magnetic flux change in the or produced in the coil 2 due to coil 1 is directly proportional to current produced in the primary coil, first coil. So where N is a constant of proportionality and is known as mutual inductance or coefficient of mutual induction. If I1 is equal to 1 ampere, then mutual inductance is phi. So the mutual inductance is defined as magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil. ठीक है स्टूडेंट. सो प्राइमरी कॉइल में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जितना फ्लक्स इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो ये हमको पता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस टाइम के साथ फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. एंड 521 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल. So minus sign is due to Lenz's law, minus d phi by dt. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 521 की वैल्यू पुट कर दीजिए. m इज कांस्टेंट, उसको हमने बाहर निकाल लेना है. तो क्या चेंज हो रहा है, करंट. अब करंट किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में, मींस प्राइमरी कॉइल में, और ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल में. सो क्या फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल, सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन द प्राइमरी और फर्स्ट कॉइल. So if di1 by dt is equal to 1, then M is equal to E. So thus mutual inductance is defined as induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is unity. Second definition, SI unit of mutual inductance is Henry, capital H के साथ represent करते हैं. So mutual inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current in the primary coil links magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil. ठीक है स्टूडेंट. तो जब करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, तो 1 हेनरी मींस म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा, जितना फ्लक्स, अगर 1 वेबर का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, 1 हेनरी. So mutual inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current. ये आपका di by dt क्या होगा, अगर 1 होगा, और EMF क्या होगा, 1 वोल्ट. अगर ये 1 वोल्ट होगा और ये चेंज हो रहा है यूनिटी di by dt, तो ये M क्या आ गया, 1 हेनरी. M क्या आ गया, 1 हेनरी. ठीक है स्टूडेंट. So mutual inductance had to be 1 Henry when unit rate of change of current 1 ampere per second in primary coil induces EMF of 1 volt in secondary coil. So जो M आएगा वो क्या होगा, 1 Henry. So mutual inductance of two long solenoids. Consider two long coaxial solenoids S1 and S2 with S2 wound over S1. Means S1 के ऊपर S2 को wound किया गया. दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है, लेंथ लेट्स सपोज L है, R1 R2 इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ सोलेनॉइड्स. एरिया ऑफ सोलेनॉइड फॉर एग्जांपल A is equal to pi r square. N1 N2 are number of turns of two solenoids. First we pass a time vary current I2 through S2. लेट्स सपोज हम इसमें करंट वेरी कराएंगे S2 में. कौन सा करंट है, I2.
द मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इनसाइड S2, जब S2 में करंट वेरी कराएंगे तो S2 में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण से, ड्यू टू I2 के कारण से, जो I2 करंट फ्लो कर रहा है S2 सोलेनॉइड में। और क्या फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2 कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स S2 कॉइल ने प्रोड्यूस कर दी स्टूडेंट, अब मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा होगा। वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने पहले कहा ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N2 ओवर L। So this is a solenoid S1, for example primary coil wound over the second coil secondary coil, ठीक है स्टूडेंट, and secondary coil is connected through the galvanometer, length L is the length of the solenoid, a side I1 current passes through this P coil, and then galvanometer shows deflection. So total magnetic flux linked with the inner coil S1 is, अब स्टूडेंट आउटर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी करंट के कारण से, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, किस में प्रोड्यूस होगा, S1 कॉइल में भी। φ1 क्या आ गया, B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी S2 कॉइल ने, एरिया किसका लेना है, कॉमन एरिया A है, दोनों को बाउंड किया गया है, और नंबर टर्न्स यहाँ पे किसकी लेनी है, अब प्राइमरी कॉइल की, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फ्लक्स अब किस में प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी किसकी लेनी है, प्राइमरी कॉइल की। φ इज इक्वल टू BA एंड नंबर ऑफ टर्न्स किसकी हैं, प्राइमरी कॉइल की। अब B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट N2 I2 और ये A इंटू N1। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coil 1 with respect to coil 2 is M12, M12 is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2। तो क्या फार्मूला है, φ1 is equal to M12 I2। सेकेंड कॉइल में B अब करंट इंड्यूस हो गया ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल। अब स्टूडेंट ये φ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वाली यहाँ पे पुट कर दीजिए, और इस N2 को भी आपने रिप्लेस कर दीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या आ गया, स्मॉल n2 कैपिटल N2 ओवर L। तो क्या फार्मूला आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो नाउ वी कंसीडर द फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर कॉइल S2 ड्यू टू करंट I2 इन द इनर सोलेनॉइड S1। अब स्टूडेंट पहले क्या था, फर्स्ट कॉइल में हमने करंट पास किया, फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल में गया। अब जो सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसके कारण से सेकंड कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट। अब स्टूडेंट उस इंड्यूस करंट के कारण फिर से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कंसीडर द फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर कॉइल S2 ड्यू टू करंट I2 इन द इनर सोलेनॉइड S1, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर से S1 में करंट इंड्यूस होगा। द फील्ड B1 ड्यू टू I1 इज कांस्टेंट इनसाइड जीरो बट इनसाइड S1 बट जीरो इन द एनुलर रीजन बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स, हेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या आई, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है स्टूडेंट। N1 is the number of turns per unit length of S1। स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, पहले फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में हुई थी, अब सेकंड कॉइल से फर्स्ट कॉइल में हुई है। सो φ2 क्या आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट कॉइल में। अब नंबर ऑफ टर्न्स किसकी लेनी है, सेकंड कॉइल की, B1 A N2, एंड ये B1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दीजिए, और यहाँ पे स्मॉल n1 की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पुट कर दीजिए। क्या फार्मूला आ गया, φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A I1 ओवर L। अब सुन क्या फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन का, अब M21 आ गया। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इज M21। M21 क्या होगा, φ2 ओवर I1। अब स्टूडेंट जो I1 था यहाँ पे, वो I1 इसके साथ क्या हो गया, कट गया, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। और स्टूडेंट M21 और M12 को हमने क्या सपोज कर लिया, M, मतलब
पहले फर्स्ट कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ था, उसके कारण से सेकंड कॉइल में फ्लक्स चेंज हो गया, सेकंड कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो गया, सेकंड कॉइल में करंट इंड्यूस होने से सेकंड कॉइल में भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वही फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में गया, फर्स्ट कॉइल में भी क्या इंड्यूस हो गया, करंट, जिसके कारण से आपस में कॉइल्स में क्या हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन। और फार्मूला क्या आ गया, वो सेम फार्मूला आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। सो फार्मूला क्या आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। अगर आपने N1 एंड स्मॉल N1 N2 की टर्म्स में लिखना है तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो, N1 आपका क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो रिप्लेस कर लो, कैपिटल N1 क्या आ गया, N1L, कैपिटल N2 क्या आ गया, N2L, यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। और स्टूडेंट फाइनल लेकिन रिजल्ट आपने यही वाला याद करना है, ठीक है स्टूडेंट, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। और एरिया अगर आपने लिख करना है पाई आर स्क्वायर तो आप यहाँ पे कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। So thus the mutual inductance of two coils is the property of their combination. It does not matter which one of them functions as the primary or secondary, ठीक है स्टूडेंट। अब प्राइमरी सेकेंडरी का कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, M1 M2 M12 इज इक्वल टू क्या आ गया था, M21। सो दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोकेटिव थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। इसको अगर ये आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए आएगी तो आपने रेसिप्रोकेटिव थ्योरम ये वाली प्रूव करनी है, M12 इज इक्वल टू M21। सो MCQs, it is possible for the magnetic field of one coil to produce an induced current in the second coil, yes, this phenomenon is known as mutual induction। So reciprocated theorem is a fact from कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन। So additional information, if two solenoids are wound on a magnetic core, उसकी relative permeability कितनी है, म्यू आर, तो स्टूडेंट म्यू आर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। सेल्फ इंडक्शन में भी यही फार्मूला है, अगर solenoids are wound on a magnetic core of relative permeability mu1 mu naught n square A ओवर L, ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला था, और म्यू आर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ने से सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों क्या है, दोनों इंक्रीज होंगी, क्योंकि एडिशनल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। If two solenoids S1 and S2 have number of turns N1 and N2 of different radii, that's so the दोनों solenoids के रेडियस क्या डिफरेंट हैं, तो क्या फार्मूला है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये म्यू आर तो स्टूडेंट आना ही आना है, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर ओवर L। यहाँ पे रेडियस किसका लेना है, जिसका स्मॉल रेडियस है, ध्यान देखो, जिसका स्मॉल रेडियस है यहाँ पे उसका एरिया लेना है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि स्मॉल एरिया वाली सोलेनॉइड में फुल फ्लक्स आ जाएगा, और जो बड़े वाले सोलेनॉइड है उस वाले पार्ट में कुछ फ्लक्स रह जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटी कॉइल है और एक बड़ी कॉइल है, अब स्टूडेंट जब फ्लक्स चेंज होगा छोटी कॉइल में पूरा फ्लक्स आ जाएगा, और बड़ी कॉइल में अब जब ये भी कॉइल प्रोड्यूस करेगी फ्लक्स तो ये भी, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ी कॉइल का रह गया। इसीलिए फॉर्मूले जो एरिया लेना है वो किसका लेना है, जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। ध्यान से देखना, ये कंपटीशन में ये वाले पॉइंट आ जाता है ये वाला। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स आल्सो ऑन रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स, आपने सोलेनॉइड्स प्लेस कैसे की हुई हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कि आपने दोनों कॉइल्स की कपलिंग कैसे की हुई है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक कॉइल आपने ऐसे रखी हुई है, दूसरी कॉइल आपने ऐसे रखी हुई है, तो ऑब्वियस है म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में क्या होगी, कम होगी। सो ये प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या फॉर्मूला है कि m ओवर स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, क्योंकि जो कॉइल्स हैं उनकी सेल्फ इंडक्टेंस तो होगी ही होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, और दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन कितनी है, m, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आ गया। और कपलिंग ऑलवेज k की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 100% कपलिंग पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इफ L1 L2 आर इन सीरीज, अगर दो कॉइल्स को हम क्या लगाते हैं सीरीज में, तो स्टूडेंट क्या फार्मूला, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, पैरेलल में लगाते हैं तो 1 ओवर L, नेट आ गई 1 ओवर L इज इक्वल टू 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2।
Now next, magnetic energy stored. This we'll discuss in next lecture. Thanks.